Xylem vessel is made up of many hollow dead cells joined end to end. I have told you like this. Their end wall have broken down, forming long open tubes which run like drain pipes throughout the. और जो इनके ends है ये क्या है? Broken है, जिसके कारण जो पानी है, water है, वो यहाँ से move करते हुए इसके अंदर से डायरेक्ट आ सकता है, and it act as a drain pipes throughout the plant. शाबाश, कोई तो है क्लास में? पता नहीं यार. Okay. From the roots, they run through the stems to reach the every leaf. Xylem vessels have strong walls made up of cellulose and lignin that provide strength and support to the stem. Is it okay? Yes, ये मैं सारा आपको देखा जाए तो एक समरी में हम इसके बारे में वर्क कर चुके हैं. सी दिस इज अ xylem vessel. इसके अंदर ये इस तरह से अंदर से हॉलो है, अगर आप सबको दिख रही है, जिसके कारण कि वाटर क्या होता है, मूव हो सकता है. इट इज ओके? Yes. ओके, अब हम बात करें. ट्राइकेट्स आर लॉन्ग, थिन एंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स with no open ends, but they also have pits in their thick cell walls. ट्राइकेट्स क्या है? इस तरीके से पतले पतले लंबे हैं, इनके यहाँ पे इनके एंड्स ओपन नहीं है. Which out of xylem and trichates, which has the open ends in them? Xylem. Trichates has the pits on their body, right? They have the pits on their body. It is okay? Body. Yes. Pits have thin cellulose wall. इन pits के पास भी चारों तरफ cellulose wall thin होती है. The water flows from one element to the other through these pits. अब देखिए होता है कि xylem vessel के आसपास चारों ओर pits की एक लाइनिंग होती है. This is a xylem vessel. इसके चारों ओर क्या हुए? Pits है. पानी इन वेसल्स के थ्रू यहाँ से इनमें आया और इनके अंदर से आसपास के एरिया में पानी इस तरह से मूव होते हुए ऊपर जाता है. इट इज ओके गाइस? Yes. ओके, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की. भाई xylem vessel इज ए लिविंग और डेड? इट इज डेड. इट इज डेड. इसका कोई काम नहीं है. इसको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई पानी के ऊपर भेजते रहा, भेजता जा रहा है, और ये काम भी आपने अपना दिमाग नहीं लगाता. ऊपर पानी कम होता है तो इसके थ्रू पानी आ जाता है. बट फ्लोएम इज ए लिविंग पार्ट. फ्लोएम इज हाफ लिविंग पार्ट एंड हाफ डेड पार्ट. तो फ्लोएम का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द फ्लोएम? आलिया. To transport the leaves to other parts of the plant. Parts of the plant. नहीं, not root to all the parts of the plant. Harsheen, what is the work of phloem? Sir, can you please repeat? What is the use of phloem in the plants? What is the function of phloem? Phloem transports products of photosynthesis from the leaves to other parts of the भाई ये लड़की गूगल सामने रख के बैठी है, वो मेरी आवाज से ही कह रही है, ये आवाज सुनो और आंसर दो. ऑटो ऑन है मतलब? ये आंसर तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे. वेरी नाइस, आई लाइक इट. बेटा पढ़ रही है, चीटिंग कर रही है? Very nice. Okay. Plants transport sugars and other metabolics synthesized in the leaves to different parts through another conductive tissues known as phloem. Unlike xylem, phloem consists of living cells. Is it okay? These include sieve tubes, phloem fibers, phloem parenchyma and companion cells. Companion cells का बड़ा important काम है इसके अंदर. The sieve tubes are the chief element of food translocation. जो sieve tubes है वो क्या है? chief elements है translocate. फूड को मूवमेंट के लिए हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. कि एक जगह से दूसरी जगह फूड को लोकेट करने के लिए क्या हेल्प करती है? sieve tubes. These are elongated cells joined end to end, but these are separated from each other through a perforated partitions known as sieve tubes. देखिए, these are the sieve tubes. ये भी xylem की तरह एंड टू एंड है, लेकिन अंदर से हॉलो भी है, लेकिन इसकी जो एंड्स है ना, वो खुले हुए नहीं है पूरे. वो थोड़े थोड़े उनके अंदर क्या है? होल्स है. लाइक वो ना इस तरह से हो गए, गटर की जैसे नालियां होती है ना. गॉट इट? Yes. किस किस को ये बात समझ नहीं आई?
देखो इसकी जो सीप प्लेट्स है वो इस तरह से होती है, परफोरेटेड होती है कि इसके अंदर से सामान मटेरियल करने के लिए पूरा नहीं जा सकता, इनके अंदर पोर्स है उसके थ्रू निकलती है। दैट्स इट, दैट्स द थिंग आई हैव टोल्ड इट हियर। Okay. The flowing fibers provide mechanical strength to the seed tubes while companion cells lie adjacent to them for support. The phallene parenchyma stores the food. और जो phallene parenchyma है देखो ये सीड प्लेट्स बनी हुई है इसमें। समझ आ रही है? कंपेनियन सेल क्या करता है, इसको सपोर्ट देने के लिए होता है, और आपका पेरेन्काइमा स्टोर्स द फूड रिजर्व्स जो बाकी कभी प्लांट्स को चाहिए और फूड लीव्स में नहीं है किसी कारण, तो पेरेन्काइमा कहता है मेरे पास स्टोर पड़ा है, यू कैन यूज इट फॉर द लेटर पार्ट ऑफ इट। सी अगर आप एक प्लांट्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, ये बीच में आप जाइलम देख पा रहे हैं, राइट? यहाँ पे ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। ये नीचे रूट हेयर्स बनी हुई है जो सॉइल से क्या लेती है, देखो अगर मैं ये केमिस्ट्री करा रहा होता या फिजिक्स करा होता, सबसे ज्यादा आंसर मेरे को गर्व दे रहा होता क्लास में। यहाँ गर्व बैठा है, सब चैप्टर खत्म करो बस। गर्व आई कैन अंडरस्टैंड योर कंडीशन राइट नाउ। क्या बोला था तूने, दोबारा बोलो, कुछ बोला था इसने, क्या बोला था? आने दे होली। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोएम और जाइलम को पढ़ लिया, पानी किस तरह से एब्जॉर्ब होता है। हमने काफी सारा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रूट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन से सेल्स होते हैं उसमें रूट्स हेयर्स के पास जिससे पानी जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। देखो रूट हेयर्स बोलो या रूट्स, जो रूट्स होती है, रूट्स के एंड में छोटे ये इस तरह से रूट्स हैं, यहाँ पे बड़े माइन्यूट हेयर्स होते हैं जो मिट्टी के, मड के या सॉइल के छोटे से छोटे गैप के अंदर भी जा सकते हैं और ये वाटर को सक कर सकते हैं या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ईच रूट हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ रूट सेल। These are extremely small, very numerous, thin-walled structures. These features increase the surface area of absorption. The cell wall of the root hair is permeable. इसकी सेल वॉल क्या है, प्रीमिएबल, क्योंकि इसने पानी के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करना है इन नेचर एंड अलाउज मोस्ट सब्सटेंस टू पास थ्रू। हाउएवर सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एंड अलाउज ओनली सर्टेन सब। देखो ये ध्यान से समझना, रूट हेयर्स के प्लांट्स सेल वॉल जो है प्रीमिएबल है, सब कुछ आने दो आने दो आने दो, लेकिन जैसे ही सब चीजें अंदर आती है सेल वॉल कहती है नो, I am selective permeable. I won't allow anything to go inside. I will only allow the selected things to go inside. It is clear? एक permeable होता है जो सब कुछ आने देता है, सेमी permeable वो मतलब होता है जो कुछ चीजों को अलाउ करेगा आने के लिए, बाकियों को नहीं करेगा। हाँ, वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, चाहे बनाना चाहो बनाओ। दिस इज अ रूट हेयर, दिस इज अ रूट हेयर। रूट हेयर के ये सॉइल्स के बीच में है जहां पे वाटर भी पड़ा है। ये बात क्लियर है यहां तक? रूट हेयर के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या देख रहे हैं, कॉर्टेक्स है। व्हाट इज दिस, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आपका एंडोमर्सिस सेल्स है, एंड देन पेरिसाइकिल है, एंड देन जाइलम है। वाटर ने यहां से कलेक्ट होते हुए यहां से जाइलम में आना होता है। इस प्रोसेस को अब हम देखेंगे। आप चाहे ये प्रोसेस याद कर लो और ये लिख दो, वाटर इज फर्स्ट गोज थ्रू द रूट हेयर्स, रूट हेयर से कहाँ गया ये, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के थ्रू एंडोमोसिस में, एंडोमोसिस के थ्रू डायरेक्ट आप जाइलम में लिख दो, और जाइलम वेसल में धीरे धीरे पहुंचा। द आउटर लेयर ऑफ द सेल इन द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अभी किसी ने पूछा भी था एपिडर्मिस क्या होता है, राइट? तो एपिडर्मिस का लॉजिक क्लियर हो गया, जो भी चीज कोई चीज एब्जॉर्ब करती है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक, इट इज ओनली वन सेल थिक। The layer of the cell around the vascular tissue in the root is called endomorphism. ये कौन सी है? The layer of a cell around a vascular xylem और फ्लोएम के जो बाहर की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमर्सिस। एपिडर्मिस is the outermost layer while endomorphism is the, देखिए ये एक रूट हेयर है, सपोज ये एक रूट हेयर है, यहाँ पे सेल्स के स्ट्रक्चर है, दिस इज एपिडर्मिस and this is endodermis। समझ आई ये बात?
ये रूट हेयर है पूरा। रूट हेयर का जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो इतना मोटा है। एक रूट हेयर में इतने सारे सेल्स है। सबसे नीचे बाहर वाला कौन सा है? एपिडर्मिस। और इनर मोस्ट कौन सा है? एंडो। यानी एंडोडर्मिस जो होता है ना, वो टच कर रहा है किसको? रूट हेयर्स को या फिलॉन के टिश्यूज को। इट इज ओके नाउ। The part of the root between the epidermis and endodermis is called root cortex. यानी ये सारा पार्ट को आप क्या कह सकते हैं? साफ साफ लिखता हूं। It is okay to everybody? Okay. The xylem tissue present in the root is called root xylem. अब जो रूट्स के अंदर xylem के देखो, अब जो होगा ना, xylem जो है वैसे तो बड़ी मोटी है। मैं ट्रीज की बात करूं, xylem इज वेरी मोटी, राइट? अगर उसको आप वेइंग मशीन में लगाओगे तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट करेंगे। हाँ, xylem क्या है? मोटी है। और मोटी चीज का वेट करेगा तो क्या हुआ? मोटिवेट। ठीक है, ये आई एम इंस्पायरिंग यू फॉर द स्टडी। यू कैन थिंक ऑफ इट, डोंट गेट ऑफेंडेड। ओके, अब देखिए, बात सोचिएगा। दिस इज द जाइलम ऑफ ए प्लांट। इसके अंदर ये एक जाइलम है, और जो ये रूट्स है इसकी बड़ी सारी, जो पानी एब्जॉर्ब कर रही है, इसको रूट्स को देखो तो रूट्स इज वेरी थिन। इससे भी ज्यादा पतली क्या है? रूट हेयर्स, राइट? तो जो रूट हेयर्स होंगी वो डायरेक्ट जाइलम में पानी नहीं दे सकती, क्योंकि जाइलम इज वेरी बिग। रूट्स के अंदर जाइलम नहीं होगी। रूट्स के अंदर जाइलम का एक पार्ट होगा जिसको हम क्या कहते हैं? रूट जाइलम। इट इज ओके। यानी कि द वाटर एब्जॉर्ब बाय द, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एपिडर्मिस, then it goes to the cortex to it goes to endodermis, and then it goes to the root xylem. From root xylem it goes to the main xylem vessel. सारा प्रोसेस था। पहले एपिडर्मिस, फिर रूट कॉर्टेक्स, सारे बोलो। देखो, समझ मुझे भी नहीं आया ना तुम्हें आया, लेकिन मजा बड़ा आया, राइट? दोबारा एक बार करते हैं, दोबारा करेंगे सारे। सबसे पहले वाटर इज एब्जॉर्ब बाय एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। रीड हर्षिन, आई एम नॉट लिसनिंग यू। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस? एपिडर्मिस। उसके बाद रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स के बाद वेट, एंडोडर्मिस के बाद रूट जाइलम। रूट जाइलम बड़ा है जाइलम से या छोटा है? रूट जाइलम। रूट जाइलम से, जाइलम से भाई जहां मर्जी जा, तो लीव्स में पहुंच जा और अपना काम खत्म। ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ ली, छोड़ना उसको, ये 11th में पढ़ेंगे उसको। ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना, हमें पता होना चाहिए ऐसा ऐसा काम हो रहा है। जब 11th में पढ़ाएंगे ना तुम्हें कि जितना भी आपने पढ़ा सारा गलत था, अब हम नई चीज पढ़ेंगे, तब तुम्हें मेरे पे गुस्सा आएगा ना। और 10th में मैं थक जाता हूँ। Okay. Root hairs are the outermost, and then root xylem are innermost. Between them, there are epidermis, root cortex, and endodermis. It is okay? Yes, sir. Okay. What causes root hairs to absorb the water? भाई root hairs पानी कैसे absorb कर रही है? मैंने फ्रूटी के अंदर पाइप लगा दी, फ्रूटी में पानी, फ्रूट पाइप में फ्रूटी आई नहीं, मैं लगा के रख दी, सुबह से कह रहा हूँ आजा आजा आजा। कोई तो मुझे सक्शन चीज करनी पड़ेगी, और उस चीज को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। वी हैव वर्कड ऑन इट प्रॉपर्ली। यस माय डियर, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन बोला मैंने, है ना? क्या बोला था बेटा? इवेपोरेशन। बेटा एक मिनट जरा वो कर, तू वो करियो, 5 मिनट रुको, पॉज। हाँ यार, इसमें पॉज भी होती होगी। याद दिलाना। ये बच्चा ना अभी थोड़ा खुश हो रहा है, इसको पता नहीं कि क्या होगा यहाँ पे है। जो यहाँ पे जो फीलिंग है ना, वो कहीं नहीं मिली। गीतिका दीदी से मिल ले, उनसे पूछे
क्या बोली? बता दिया कि बहुत बढ़िया है। ये नहीं बोला होगा, बाकी सब बोला होगा, पढ़ लियो नहीं तो भाई बुरा हाल होगा, बोल दिया उन्होंने। हाँ नहीं, वो अब तो कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली। ऐसा थोड़ी है हमारे यहाँ के बच्चे, एक आधा निकल जाता है। ओके, द रूट hairs are in close contact with water present in the space between the soil particles, right? The cell sap of root hair is a more concentrated solution as compared to soil water, as it contains dissolved salts and minerals. अब ये 9th का पार्ट आ गया है। देखिए, अब जो रूट हेयर्स के जो सेल्स है उसके अंदर ज्यादा मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स और मिनरल्स सॉइल में भी है। अब आप एक चीज याद रखिएगा, आप 2 गिलास पानी लो, मैं आपको थोड़ा सा 9th का बताऊंगा। इसके अंदर आपने 2 स्पून शुगर डाली है या सॉल्ट डाली, इसके अंदर आपने हाफ स्पून डाली है, ठीक है। किसके अंदर, दोनों में पानी इक्वल था और दोनों में, एक में 2 स्पून डाली, एक में हाफ स्पून डाली, किसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है? या शुगर या सॉल्ट जो भी डालिए, किसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है? यानी कि ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, किसके अंदर है ज्यादा? फर्स्ट के। किसके अंदर पानी क्वांटिटी कम हो गई? नहीं, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। जब हम किसी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डाला, तो अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखेंगे तो आप कहेंगे कि जिसके अंदर पानी नमक या कोई चीज ज्यादा डिसॉल्व की हुई है तो उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई? परसेंटेज वाइज कम हो गई। सो स्पून 2 हैज अ लेस वाटर कंसंट्रेशन एंड स्पून 1 हैज अ लेस वाटर कंसंट्रेशन एंड स्पून 2 हैज अ, यानी ग्लास 2 हैज अ, सॉरी, हाई वाटर कंसंट्रेशन। अब दूसरा प्रोसेस ये देखते हैं कि अगर ये दोनों पाइप्स है, ये बिना स्पून के, अब ये बिना सॉल्ट या शुगर के, राइट, सिंपल प्लेन वाटर है, ये पूरा भरा हुआ है, ये हाफ भरा हुआ है, ये यहां तक भरा हुआ है। मैं इसको पाइप से लगा देता हूं, पानी, वाटर विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पाइप 1 to 2 और पाइप 2 to 1, 1 to 2 till both reaches the same level, till both reaches the same level। ये क्यों हुआ? ये एक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, दे मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, राइट। अब यहां पे बात देखिए, if salt or other things are dissolved in water, मैं कह रहा हूं salts other are dissolved in water, more quantity, तो here water concentration is less, here Water concentration is less. आप समझो इस बात को कि रूट्स के अंदर नमक और मिनरल्स ज्यादा पड़े हुए हैं रूट हेयर्स में, और बाहर भी नमक और मिनरल्स हैं, लेकिन बाहर जो क्वांटिटी है वो 1 स्पून की है, अंदर कितने स्पून की है? 2 स्पून की। अब रूट हेयर्स में भी पानी होगा, बाहर भी पानी होगा, लेकिन नेचर के हिसाब से पानी किसमें ज्यादा हुआ? जहां पे 1 स्पून की, यानी पानी ज्यादा कहां पे है? सॉइल में, और रूट्स के अंदर पानी कम है। तो वहां पे अब क्या प्रोसेस हुआ कि आपका डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, या ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ऑस्मोसिस ऑफ द water from the region of high concentration to the lower. So water will start moving from the soil towards the root hairs. समझ आएगी कैसे अंदर आया? The cell sap of root hairs is a more concentrated solution as compared to the soil water, as it contains dissolved sugars and mineral salt. चल जाएगा ये ना, 2 बार ही चलता है, its water gradient because of which the soil water passes into the root hair cells by the process of osmosis. It is okay. As the absorption of water is in the direction of concentration gradient, it is known as, ये concentration gradient एक्टिव नहीं हुई, एक्टिव का भी 9th में याद होगा हमें क्या था। एक्टिव में हम सोडियम पोटेशियम वगैरह करते थे, दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन एंड एनर्जी इज यूज्ड अप इन दिस। वो एक्टिव थी जो यहाँ पे अब हम यूज नहीं हो रही, यहाँ पे पैसिव हो रही है कि भाई हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू।
Water thus absorbed by the root hair passes from the cell to cell in the root cortex by osmosis and then enters the endodermis, followed by pericycle and finally the xylem vessels present in the center of the root. Xylem vessel से फिर वो xylem में गया, xylem से फिर वो ऊपर ट्रांसपोर्ट हुआ and it goes everywhere. It is okay, guys? अब minerals कैसे होते हैं? The minerals are present in dissolved salt in the soil water. So these are also absorbed by the root hairs, but in the forms of minerals कैसे फॉर्म में जाते हैं? Iron. Most of the times the mineral ions in the soil water are at lower concentration than those present in the देखो अभी हमने बात की थी कि रूट हेयर्स के अंदर मिनरल्स पहले से पड़े हुए हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करना है, यानी कि अब मिनरल्स ऑस्मोसिस से नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी जब सॉइल के साथ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो मिनरल्स भी जा रहे होंगे प्लांट्स, लेकिन मिनरल्स कहते हैं कि भैया पहले ही मिनरल यहाँ बहुत है रूट हेयर में, हम नहीं जाएंगे। तो उनको क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारे साथ ताकत लगा के सुबह उठा के स्कूल भेज रहा है, जा तू जाएगा कैसे नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पे कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है? क्योंकि मिनरल्स ज्यादा कहाँ पे है अभी? रूट हेयर में। रूट हेयर में मिनरल ज्यादा है, सॉइल में कम है, तो एक्चुअली जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस या डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो तब वर्क करता है कि जहां पे ज्यादा है वहां से लो प्रोफाइल में जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमने भेजना है लो से हाई में। तो यहाँ पे एनर्जी यूज होती है और वो एनर्जी से उनको पुल किया जाता है, और जैसे आप कहीं जाना नहीं चाहते, आपके दोस्त खींचते हैं, ताकत लगाते हैं, राइट? जैसे आप लोग क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहते, 7 दिन पढ़ते, आपके फ्रेंड्स घर वाले खींच खींच के लाते हैं ना। अरे इसको रिवर्स करो ना, ग्राउंड से तुम्हें घर ला रहे हैं, ऐसा हुआ है कभी? पकड़ के लाए, चल घर, एक बार ही में आ जाते हो? वाह यार, कलयुगी बच्चे हो तुम, बड़े अच्छे बच्चे हो, सारे ऐसे हो। अच्छा, डरा दिया यार। टाइम घड़ी दे दे। हाउ यू डेयर टू लुक एट द वॉच? अभी तो टाइम है, बहुत है, 4 बजे क्लास स्टूडियो, क्या टाइम हो बेटा? ये बच्चा दिन में 10 बार सॉरी बोलता है और 25 बार पंगे लेता है मेरे से। ये खतरनाक है। ये नीचे जाके बड़ा ये बंदा हुआ, आज देखा ना सही मत चलिए करता है ना ऐसे। ओके, तो दिस इज डन बाय द एक्टिव, हाँ, ओके। As the result, these ions cannot pass into the root hair cells by passive absorption. तो यहाँ पे कौन सी absorption होगी? So यहाँ पे therefore absorption of mineral unlike water occur by active transport, which is against the concentration gradient and require energy. ये मैंने सारी बात बता दी है, सबको क्लियर है? Plants absorb salts of potassium, calcium, nitrate, phosphate and sulfate by active transports only. इवन हमारे सेल्स को भी ऐसे चाहिए होता है। हमारे बॉडी में जब ब्लड लेकर आते हैं तो सेल्स के अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि सेल्स के अंदर पहले से पड़े हैं, वहां भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। Once absorbed by the root hair, they are passed into the xylem vessels through the cortical cell, endodermis and pericycle. So here the osmosis is a process of diffusion. मैंने आपको सारा बात बता चुका हूँ, इसको आप रीड कर लो एक बार प्लीज। मल्टी स्क्रीन कैसा लगा? सबको समझ आया? प्लीज बढ़ा दो। बेशरम। पांच मिनट रुक जा, खत्म हो रही है। चलो अब हम ना एक बार इसका वीडियो देखते हैं, ठीक है? एक बार इसको समझते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, फिर पानी पी लेना उसके बाद। Transport of water and salts in plants. The salts present in the soil dissolve in the water, resulting in a salt solution when the soil is watered. As the amount of water provided to the salt is quite large, the solution will be a dilute salt solution. The roots of plants have small hair-like structures called root hairs, originating from cells of a single-layer epidermis. Dissolved salts are present in the cytoplasm of these cells, also called as cell sap.
Cell sap is much more concentrated than the salt solution present in the soil. Cell sap is also a salt solution. However, it is more concentrated than the salt solution present in the soil. The cell membrane अब of the समझो root इसको। hair is a semi-permeable membrane that separates the cell sap, which is the concentrated salt solution, from the salt solution in the soil, which is the dilute salt solution. Water flows along with solutes from the soil into the cell sap of the root hairs. Thus, roots absorb water and salts from the soil by the process of osmosis. The absorbed water and salts will move to the next cell once again by osmosis. The movement of water from the roots to the other parts of the plant above the ground is called the ascent of sap. Water is transported from the roots to the leaves through the xylem vessels. Water and salts from the root hairs pass into the epidermal cells and to the cortical cells, then to the endodermic cells, and finally into the xylem. The transport of water from the roots to the leaves is aided by the physical and the chemical properties of water and the composition of walls in the xylem vessels. These vessels are made of lignin and cellulose, which have strong attraction of water molecules. A thin, continuous layer of water is formed in the walls of the xylem vessels. This is because of the strong attraction or adhesive force. Between the water molecules themselves, there is a strong attraction or a coercive force due to the formation of hydrogen bonds between the water molecules. Because of this, thousands and thousands of water molecules attach to the water molecules present on the walls, thus forming a continuous column of water molecules. The water molecules already present in the water column either get displaced or moved by the newly entering water molecules, ultimately pushing the water molecules towards the leaves. Root pressure is the pressure exerted by the water molecules absorbed by the root hairs. It is clear. Yes, sir. वो कहाँ गया? उधर आ गया? मेरा भी। ओके। थक गए? हाँ? कोई बात नहीं। 6 बजे तक। 6 बजे मेरी नेक्स्ट क्लास है। मैं बोर हो जाऊंगा नहीं तो 15 मिनट। हाँ? तू नहीं जाएगी? तू वॉलंटरी में आएगी? आज ये करेगी कि मैं वॉलंटरी तो मैं नहीं आऊंगी, तो उनमें से आ गई। मतलब आप उनमें से आ गए हो कि आप वॉलंटरी है तो मैं नहीं आऊंगी, कोई बात नहीं है। तुम भी फिर क्यों पूछ रहे हो वॉलंटरी है? फिर ये क्यों पूछ रहे थे वॉलंटरी है? और कौन है? और कौन है जो वॉलंटरी सोच रहा था आएंगे नहीं आएंगे? बेटा बंद कर दे आपको कैमरा, बंद कर कैमरा तू।